अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कैसे आप सब ठीक है? तो मुझे ये बताएं कि जो लास्ट क्लास हुई थी आप लोगों की, उसमें आपको याद है कि आप लोगों ने क्या कुछ पढ़ा था? मैम यूएसए कांग्रेस के बारे में पढ़ा था हमने। हम्म, कांग्रेस के बारे में पढ़ा था, तो उसमें क्या कुछ पढ़ा? मैम उसमें हमने पढ़ा था कि वो जो है उसमें दो हाउसेज होते हैं, सेनेट अपर हाउस होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस होता है, और वो हम्म, अमेरिका की लेजिस्लेटिव पावर कांग्रेस के पास होती है। और ये उससे के फंक्शंस पढ़े थे, पावर्स और पढ़ी थी इसकी, ये सब चीज़ें पढ़ी थी मैम इससे रिलेटेड। और कोई बच्चा बताएगा कि क्या कुछ पढ़ा था हमने? तो मैम ये मुझे दो हाउसेस जी। मैम दो हाउसेस कांग्रेस के बारे में थे कि मतलब उसके दो हाउसेस थे, वो मुश्तमिल है कांग्रेस। जैसे कि हमारे इधर पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, और इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, और उसका जो है वो अपर हाउस सेनेट है, और लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। और इसमें जो है दो ही चैम्बर्स हैं इसमें। अपर हाउस में जो है गवर्नमेंट, नहीं सॉरी एक मिनट, ना उसके कुछ कंपोजिशन वगैरह थी, वो बता दो। मैंने ना आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जो है यूएस कांग्रेस, ठीक है, उसमें मैंने आपको अपर हाउस पढ़ाया था, लोअर हाउस पढ़ाया था, सेनेट और जो था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। मैंने उसकी ना कलेक्टिवली आप लोगों को पावर्स बताई थी, रोल ऑफ कांग्रेस इन यूएस सिस्टम, कि ये दोनों मिलके कैसे काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था कि इसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, जिसका जी, रोल ऑफ कांग्रेस इन यूएस सिस्टम, रोल ऑफ कांग्रेस, the American Congress is bicameral. The first article of the American Constitution says that all legislative powers herein granted shall be vested in the Congress of the United States, which shall consist of a Senate and the House of Representatives. The Congress of the United States is the legislative body of the country. Its function is to make laws. The Constitution of the USA has made Congress a powerful institution. Another consideration was that the bicameral system would maintain the powers equilibrium between the various units of the federation. Through the provisions for two chambers, it was possible that at least in one house, all the states get equal representation regardless of size or population. Composition. Here we will discuss the composition of Congress. Number one पे है the upper house is the Senate, which is called the Millionaire Club, and House of Representatives, which is the lower house of the Congress. Powers and functions of Congress. Number one पे है legislative, regulation of monetary financial system, formation of armed forces, collection of tax, lawmaking. Executive functions were making of treaties, appointments, creation of new departments, fixation of salaries and functions. Judicial functions are composition of Supreme Court, determination of appellate jurisdiction of Supreme Court, impeachment of President and others. Confirmation of presidential appointments, creation of posts, electoral fee, counting of votes, selection of president and vice president. Inherent powers may be admission of new states, declaration of war, treaties, maintenance of diplomatic relations. Emergency powers thing during the national crisis, Congress has emergency powers. These powers are inherent. National government are therefore unlimited. Amendment है, a proposal for constitutional amendment may be initiated by the Congress with the two-third majority in each house of the special convention called by the Congress.
Investigations. Congress performs investigative functions through the regular standing committee and by special committee set up for the purpose. Financial method. Congress alone has power to grant money to the federal government. All bills of revenues are initiated in the lower house. Distinctive features of the working of the Congress, absence of leadership of the executive. There is neither any government nor any opposition in both houses of the Congress. Legislative initiative in the hands of the private members bill are usually moved by the private members. Burden of proof. Congress has to deal with an enormous amount of business. It also deals with the short with all sort of problems concerning international and national level. Lobbying. The legislative work of the Congress is also affected by lobbying. These lobbyists vigilantly guard the interest of industrial organizations which they represent. These lobbyists protect their rights. Role of committee plays a vital role in the legislation. All the bills are referred to the committee. Position of upper house of the Congress, which is known as the Senate, has domination over the lower house. Uh, we can use the words of Ernest S. Gift that the Congress of the United States is the world's best hope of the representative government. The legislative power of both the houses are equal, but in effect, the Senate is more powerful than the House. ये तो होगी पिछले लेक्चर की रिवीजन. आगे अब हम देखेंगे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एक्सप्लेन. जब हम लोगों ने फीचर्स पढ़े थे ना इसके यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हमने देखा था कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजिड. हमने ये एक इसमें पढ़ा था कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से रिजिड होगा. सही. The US Constitution is written and rigid in its nature. It is rigid because the process of amendment is very difficult and complicated. Special method is required to amend the Constitution. It is due to the reason that only 26 amendments have been made in the Constitution so far. इसमें आपने रीजन देखी है कि Constitution is written and rigid in its nature. As you all know that it is rigid because the process of its amendment is very difficult and complicated. Special method is required to amend the Constitution. It is due to this reason that only 26 amendments have been made in the Constitution. So, process of amendment में है Article 5 of the US Constitution prescribes the amending process. Stages of amending process. The amending process has two stages, one of the proposal and second of ratification. कितनी stages है? There are two stages, one of proposal and the second of ratification. These two stages can be conducted in following way. Proposal initiated by Congress. Proposal कौन initiate करता है? Congress. An amendment may be proposed by 2/3 majority in each house of the Congress. एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि दोनों हाउसेस की चाहिए होती है मेजोरिटी 2/3. तो इसको देखते हैं आप इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रपोजल इनिशिएटेड बाय कांग्रेस एन अमेंडमेंट मे बी प्रपोज्ड बाय 2/3 मेजोरिटी इन ईच हाउस इन द कांग्रेस. तो दोनों हाउसेस की जरूरत होती है उनकी जो है वो सेंट की. ठीक है. इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टेट. ये रेटिफाइड होना चाहिए 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट. कितनी स्टेट से होना चाहिए? 3/4. जी. The ratification may be done either by the state legislative or by the special convention held in the state for this purpose. और इसमें आप ये देखें कि हाउस ऑफ कांग्रेस
जो है वो सबसे पहले क्या करती है, 2/3 मेजोरिटी से एक अमेंडमेंट को प्रपोज करती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय द 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टेट। एक 3/4 जो स्टेट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ द स्टेट हैं कि वो जो है वो उसको रेटिफाई कर देंगी। रेटिफाई का मतलब होता है तस्दीक करेंगी इसकी। तस्दीक तो आपको समझ आ गई होगी कि बात पक्की करना तस्दीक करती है, ठीक है, तस्दीक कर देती है। अच्छा, उसके बाद क्या है, दी स्टेट्स इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय द 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टेट। द रेटिफिकेशन मे बी डन आइदर बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव और बाय द स्पेशल कन्वेंशन। ये हो सकती है कि वो स्टेट के जो लेजिस्लेटिव है वो उसको रेटिफाई कर दे, या फिर स्पेशल कन्वेंशन जो कि स्टेट में मुनक्किद किए जाएंगे, प्रपोज किए जाएंगे, उनमें हो जाए। Amendment initiated by state legislation. The state may also themselves take the initiative in proposing amendment. If 2/3 of the state legislature apply to the Congress for this purpose, the Congress calls the Constitutional Convention, which shall, on the basis of original recommendation, propose the amendment. इसमें दूसरा ये है कि अगर स्टेट चाहे तो वो भी इनिशिएट कर सकती है कोई भी अमेंडमेंट प्रपोज कर सकती है। जो उसके लेजिस्लेटिव बॉडी के 2/3 जो मेंबर्स हैं वो कांग्रेस में उसको अप्लाई कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। These amendments must be ratified by 3/4 of total number of states. The ratification may be done either by the state legislature or special convention held in the state of this purpose. वो ऊपर वाली बात आ गई कि या तो वो स्टेट की लेजिस्लेचर जो है वो उसको करेंगे, इसकी रेटिफिकेशन करेंगे, या फिर जो स्पेशल कन्वेंशन हो रहे होंगे और उसमें इसकी होगी। सही। Modes of ratification. The modes of ratification to be determined by the Congress. कि जो यहाँ पर मोड ऑफ रेटिफिकेशन है वो कांग्रेस डिटरमिन करेगी। टाइम लिमिट फॉर रेटिफिकेशन, फॉर्मली देयर वाज नो टाइम लिमिट फॉर द रेटिफिकेशन ऑफ अ बिल पास्ड बाय द कांग्रेस। फॉर्मली देयर वाज नो टाइम लिमिट फॉर द रेटिफिकेशन ऑफ अ बिल पास्ड बाय द कांग्रेस। इट इज स्टेटेड दैट in one case the ratification was made after 80 years. However, the law has been changed and it is provided that whole process of ratification must be completed within 7 years, and if it is not done, the amendment falls through. Formerly, there was no time limit for the ratification of a bill. कि आमतौर पर कोई टाइम लिमिट नहीं होती रेटिफिकेशन ऑफ बिल पास करने के लिए, पास हो तो कांग्रेस से पास होता है। इट इज स्टेटेड दैट in one case the ratification was made after 80 years, कि एक केस में जो रेटिफिकेशन थी वो 80 साल बाद हुई। However, the law has been changed. It is provided that the whole process of ratification must be completed within 7 years, and if it is not done, the amendment falls through. Assent of President non-necessary. It was held by Supreme Court that an amendment is solely a legislative function, and the President need not to assent to propose amendment before it is sent to the state. कि उस वक्त जरूरत नहीं होती जब ये अमेंडमेंट जो है वो स्टेट्स को सेंड की जाती। Restriction on amendment. The Constitution has itself laid down certain restrictions on its amendment. Article 5, according to Article 5 of Constitution says that no state without its consent shall be deprived of the equal suffrage in the Senate. जो मैंने आपसे वो करवाया था ना यूनिवर्सल सफरेज वाला, उससे रिलेटेड है। देखें कि आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो स्टेट विदाउट इट्स कंसेंट, कि उसकी मर्जी के बगैर, किसी स्टेट की मर्जी के बगैर, शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स इक्वल सफरेज, तो डिप्राइव नहीं किया जा सकता इक्वल सफरेज इन द सेनेट।
कि इसकी सेनेट की जो इक्वल सफरेज है उसमें इसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता इसकी राइट को। आर्टिकल 6 सेक्शन 3 sorry article 4 section 3 subsection 1 of the constitution says that a state cannot be divided into two or more states, nor two or more states can be combined into one without the consent of the legislature concerned. Constitution says that a state cannot be divided into two or more states, nor two or more states can be combined into one without consent of the legislature concerned. आर्टिकल 4 सेक्शन 3 सबसेक्शन आई कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी स्टेट को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं किया जा सकता और दो स्टेट्स को कंबाइन भी नहीं किया जा सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ लेजिस्लेचर कंसर्न, एक उसकी लेजिस्लेचर की कंसर्न के बगैर। क्रिटिसिज्म ऑन अमेरिकन अमेंडिंग प्रोसेस following defects has been pointed out in the amending process of the US Constitution. Unadoptability number 1 पे है unadoptability. The US Constitution lacks the issue of adoptability with the change of time. It can be shown by the proposed amendments, which were more than 4,000 since 1787, and only 27 secured the requisite schedule. The US Constitution lack the virtue of adoptability with the change of time. change of time के साथ वो उसमें lack of ability है कि वो adopt करे चीजों को. It can be shown by the proposed amendment which were more than 4,000 since 1787 and only 27 secured the requisite schedule. ये 4,000 अमेंडमेंट जो थी वो आई थी प्रपोज की गई थी जिसमें से सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स ही की गई। स्लोनेस ऑफ प्रोसेस, the amending process is very slow, involving two stages of proposal and ratification. Amending process is very slow, involving two stages of proposal and ratification, and the Constitution has not prescribed a time limit for it. कि अमेंडिंग प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है, 2 स्टेजेस में ही है, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं दी जिसकी वजह से उसकी रेटिफिकेशन मुश्किल हो जाए। अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन मेसेजेस इमेजिन consent of the states and not the majority of the population. For example, 15 small states with say 1/10 of the total population may prevent 9/10 of the people from affecting the change in the constitution. This is considered to be against the spirit of democracy. Against the spirit of democracy, US Constitution imagine consent of the states and not the majority of the population. क्या होता है कि ये जो है स्टेट्स की कंसेंट चाहिए होती, पॉपुलेशन की कंसेंट नहीं चाहिए होती। फॉर एग्जाम्पल 13 स्मॉल स्टेट्स which say 1/10 of the total population may prevent to 9/10 of the people from affecting any change in the constitution. This is considered to be against the spirit of democracy. This constitution is a living organism. The rigidity has also been provided as the fathers of constitution were cautious to avoid all possibility of erratic changes in the constitution. सब स्टूडेंट्स ने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो तरह से दो स्टेप्स पे होती है, एक प्रपोजल होता है और दूसरा रेटिफिकेशन। ठीक है, प्रपोजल कहाँ से आता है? प्रपोजल आता है कांग्रेस की तरफ से और उसको रेटिफाई कौन करता है? उसको रेटिफाई करती है स्टेट्स। तो जब स्टेट्स रेटिफाई करती हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई
कि वो जी इतनी टाइम लिमिट है तो आपने इतने अरसे में जो है वो करके छोड़ देना। क्या होता है कि वो टाइम लिमिट जो उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है, जिसकी वजह से जो कई दफा वो 80-80 साल तक ले जाती है उसको पूरा करने के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इजाफा करती चलूँ मेथड में। The Congress, whenever two-thirds of both houses shall deem it necessary, shall propose an amendment to this constitution or on the application of the legislature of two-thirds of the several states shall call a convention for the proposing amendment, which in either case shall be valid to all intents and purposes. As part of this constitution, when ratified by the legislature of three-fourths of the several states or by convention in three-fourths thereof, as the one or the other mode of ratification may be proposed by the Congress, provided that no amendment which may be made prior to the year 1808 shall in any manner affect the first and fourth clauses in the ninth section of the first article, and that no state without its consent shall be deprived of its equal suffrage in the Senate. Method for amendment and ratification. It is clear that there are two methods of proposing amendments and two methods of ratification. However, the method which is usually adopted in the proposals for amendment are introduced in the Congress, and the ratification is done by the three-fourths of the state legislature. वो जो मैंने आपको बताई थी बात के जो है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो थ्री-फोर्थ की जो है उससे वो उसको किसी भी चीज को वो करेगा, किसी भी अमेंडमेंट को जो है वो उसको रेटिफाई करेगा। टाइम लिमिट, formally there was no time limit for the ratification of a bill passed by the Congress. In one case वो वही वाली बात आ गई, यहाँ पर भी 80 years जो थे वो लगे थे कि ratification was not made after 80 years. However, the law has been changed and it is provided that the whole process of ratification must be completed within 7 years. उसके बाद ये हुआ था कि 7 years का टाइम रखा गया था, क्योंकि आपको पता है कि 80 साल में तो वैसे ही लॉज बहुत सारे चेंज हो जाते हैं, अमेंडमेंट आ जाती है, नया वो सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए ये कोई एक लॉजिकल बात नहीं थी कि 80 साल बाद उसको रेटिफिकेशन मिलती है। तो इसलिए मैंने कहा कि 7 years के अंदर अंदर रेटिफिकेशन जो है वो जरूरी है। And if it is not done by amendment clause, it is to be noted that the right of every state cannot be taken away by any amendment without its own consent। कि कोई भी जो स्टेट है वो अपनी मर्जी से तो अपना राइट को जो है वो छोड़ सकती है कि पार्टिसिपेट करे इन अमेंडमेंट, अदरवाइज उसको नहीं डिप्राइव किया जा सकता। उसमें यूनिवर्सल सफरेज के लिए के कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात करते हैं कि किसी भी कोई भी बंदा जो है वो अपनी मर्जी से अपना राइट ऑफ वोट या राइट ऑफ जो है वो छोड़, कोई भी राइट को वो वेव कर सकता है, अदरवाइज कोई अपना जो है वो ऊपर जबरदस्ती से उसका राइट नहीं छीन सकता। क्रिटिसिज्म मैंने आपको पहले बताया था कि देयर हैज बीन दम लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन द सिस्टम ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। It is pointed that the process is difficult and slow within a period of more than 10 years. It has been possible to carry only 27 amendments to the Constitution. Out of these, 10 amendments were made soon after 1789, as originally considered to be part of Constitution itself. As originally framed, the 3 amendments were made as a result of civil war. It was deductively 13 amendments, the balance is only 14, and that is not encouraging thing. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 10th अमेंडमेंट थी ना वो तो राइट्स को ना स्टार्ट कर सही, और वो समझी जाती है, वो जो अमेंडमेंट समझी जाती है वो ओरिजिनली पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही समझी जाती है। वो अमेंडमेंट ओरिजिनली पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही समझी जाती है, क्योंकि वो 10th अमेंडमेंट तो फौरन ही होगी थी ना 1789 बिल ऑफ राइट्स पे जो थी 10 अमेंडमेंट, जिसके बारे में मैंने आपसे क्लास में भी बात की थी और आपको बताई थी कि वो 10 अमेंडमेंट कौन सी थी, मैंने उनकी लिस्ट भी आपको बताई। अच्छा,
उसके बाद क्या था कि जो 3 अमेंडमेंट्स थी वो हुई थी सिविल वॉर के फौरन बाद। तो ये जो 13 अमेंडमेंट्स है ये समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही थी। तो अगर हम देखें कि 1789 से लेकर अब तक सिर्फ 14 अमेंडमेंट बनती हैं जो वाकई प्रपोज हो के आगे गई और उनको रेटिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट्स मिली। Acha. If 3 amendments were made as a result of civil war, if we deduct these 13 amendments, the balance is only 14, and that is not encouraging thing, as the amending process is unwieldy and cumbersome. It is not possible to adjust the constitution to the changing time. इस तरह से मुश्किल हो जाता है कि हम उस जो है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंजिंग टाइम्स के साथ इसको कंबाइन कर सकते हैं। Even the most urgent changes may not be made on account of difficulty of the amending process. The system results in the tyranny of the 13 states. Even if the 37 states are in favor of an amendment, the amendment cannot be carried if 13 states decide to oppose the same. यहाँ पर एक और भी पॉइंट है कि जो 13 स्टेट्स है ना, वो जो मेजर बड़ी मेन स्टेट्स है, जो मैंने आपको फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में पढ़ाया था कि वो 13 जो मेन स्टेट थी जो सबसे पहले आस्तीन के साथ मिली थी अमेरिका के साथ, और उन्होंने वो उनका शुरू से ही फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के से ही उनके साथ उसका चला, वो बड़ी स्टेट्स हैं क्योंकि बड़ी स्टेट्स जो होती हैं ये जब तक किसी इसको रेटिफाई ना करें, अगर 37 छोटी स्टेट्स सारी की सारी भी मान जाए तो फिर भी वो जो है वो अमेंडमेंट अप्रूव नहीं होगी। It is pointed out that if we were to take the 13 smallest states in the US, their population may not come up to the state New York itself, but these 13 states, 13 states can defeat the will of 37 states. कि जो 13 छोटी छोटी स्टेट्स हैं जो मेन उसके अमेरिका की स्टेट्स हैं, वो अगर चाहें तो वो बड़ी स्टेट्स को भी कर सकती हैं, ठीक है, वो उनकी बात को खराब कर सकती है। नंबर ऑफ पर्सन, इट इज ऑल्सो pointed out that the number of persons involved in the process of amendment is very small and is estimated to be in the neighborhood of 7,400. What is more, they participate in the process of amendment only incidentally, that is the members of various legislatures in the country, and not by virtue of the mandate given to them by the country. In that we have the state legislature should not have been given the final say in the matter. Their main duty is to make law for the state, or often they are asked to decide the matter which it was clearly for the public when they were elected candidates. Such a method is criticized because it is costly in the nature and does not provide for the subject and searching consideration, which is with a change in the supreme law of the land deserves. However, according to Madison, the American method of amendment guards equally against the extreme facilities which would render to the Constitution to mutable and with extreme difficulty, which might perpetual discovered faults. इसमें वही चीज को बताया गया कि इट इज पॉइंटेड आउट दैट द नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज वेरी स्मॉल। कि जो लोग अमेंडिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं वो बहुत थोड़े लोग होते हैं, ठीक है। इन द नेबरहुड ऑफ 7400 तकरीबन जो है उसको एस्टिमेट किया जाता है कि 7400 जो पर्सन है वो रजिस्ट्रेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं, बाकी जो आबादी वो रजिस्ट्रेशन में हिस्सा नहीं ले रही होती। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ तो बहुत ज्यादा जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है और दूसरी तरफ वो इसको लिमिट भी कर रहा है। Role of state and more time to fix for the ratification of the proposal amendment of the constitution. The result is that the state takes a lot of time to approving or rejection the proposed amendment। वही बात थी जो मैंने आपको बताया था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिसकी वजह से जो है कि वो अमेंडमेंट जो है उसको अप्रूव या रिजेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। इन 1924 द कांग्रेस पास एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू चाइल्ड लेबर बट did not fix any time limit for the ratification.
The result is that the only 28 states had ratified the amendment so far, and the last state to do so was the state of Kansas. Kansas, and this was done in 1937. The state of Ohio ratified and amended after the lapse of 8 years. The state of Georgia and Georgia ratified the first 10 amendments in 1939. They took about 150 years to ratify them originally. The time taken ratification is not so much. It varied between 3 years and 7 months for the 16 amendments, and only 7 months for the 12. The average of the 25 amendments is 21 months. इसमें डिफरेंट अमेंडमेंट्स का टाइम दिया गया कि एक जो अमेंडमेंट हुई थी उसमें जो था वो 80 साल लगे, एक में 150 साल भी लग गए, और एक में था कि एक को जो 3 साल में रेटिफाई किया गया सही, और 7 मंथ में भी किया गया 16 अमेंडमेंट को 3 साल, और 7 माह में किया गया 16 अमेंडमेंट को, और 7 माह लिए गए थे 12 अमेंडमेंट को, और जो 25 अमेंडमेंट है वो सिर्फ 21 मंथ यानी कि 21 माह में हो गया। सजेशन हम लोग जैसे जिसको सजेस्ट करते हैं जो हमारे जो है जूरिस्ट हैं कि वो अमेंडिंग प्रोसेस के लिए क्या सजेस्ट करते हैं, मेनी सजेशंस हैव बीन मेड फॉर द simplification of the amendment process. According to some proposals for the amendment should require only a majority vote in both houses of the Congress, and ratification be made by 2/3 of the states instead of 3/4 of the states of the majority of the people voting by referendum in the majority of the states. Every year, memorials are sent to the state legislature calling upon the Congress to call convention for the consideration of the suggested amendments. Those are referred to the select committee when choose for them. बहुत सारे प्रपोजल भेजे जाते हैं, बहुत सारी जो है वो मेमोरियल भेजे जाते हैं कर अपने इस तरह, लेकिन वो जो है वो बुझा दिए जाते हैं। Thus, we can conclude from the above discussion that the American Constitution is a rigid one, but it has adopted itself to tremendous changes in America. It has borne the storms and strains of these great changes because it has also some powers of development and adaptability. कि बेशक इसमें जो कुछ भी है, लेकिन अमेरिका में तो बहुत सारी ऐसी चेंजेस आ रही है ना जो कि जिसने अमेरिका में एक इनकलाब बरपा कर दिया, उसको सुपर पावर बना। बेशक ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिजिड है, सब कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अमेरिका की तरक्की में बहुत ज्यादा साथ दिया। स्टूडेंट से समझ आया आपको बहुत? मोहम्मद आरिफ जी, सिर्फ मोहम्मद आरिफ को समझ आया? अच्छा, अब इसको कोई रिवाइज करेगा? मैम मैंने पूछना था टाइम लिमिट क्या है मैम इसमें अमेंडमेंट की? मैम उसमें 7 इयर्स आपने बताया था, उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। उन्होंने कहा कि अगर स्टेट्स के पास जब रेटिफिकेशन के लिए जब जाता है ना एक जो प्रपोजल है या अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज की जाती है कांग्रेस से, तो वो स्टेट के पास रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है, तो वो 7 इयर्स के अंदर अंदर उसको रेटिफाई करेगी, अदरवाइज जो है वो खत्म हो जाएगा बिल। समझ आ गई? ओके मैम, ओके। बताइए कि उसको रेटिफाई करेगी कि हाँ या ना में जवाब देगी कि हम इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। और मैम ये जो छोटी स्टेट्स होती हैं, आपने बताया छोटी स्टेट्स बड़ी स्टेट्स को मतलब उनका अमेंडमेंट को मना कर सकती हैं, तो मैम जो पहली 13 स्टेट्स थी उनका क्या स्टेटस है? जो पहली 13 स्टेट्स है ना, जो स्टेट्स है ना ओरिजिनली अमेरिका की जो स्टेट्स मानी जाती है, जो ओरिजिनली जो है ना स्टेट्स मानी जाती है अमेरिका की, मैंने आपको उसकी वो बताया तो था उसकी जब मैंने आपको पढ़ाई थी इसकी हिस्ट्री, याद नहीं है? यस मैम, वो जो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में 13 स्टेट्स आई थी। हाँ जी, तो वो क्या थी?
जो उसकी ओरिजिनल 13 कॉलोनीज थी अमेरिका की, डिलावेयर, न्यू जर्सी, जॉर्जिया, मेरीलैंड, साउथ कैरोलिना, न्यू हेम्पशायर, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, नॉर्थ कैरोलिना एंड रॉड आइलैंड एंड प्रोविंस ऑफ प्लांटेशन। ये जो थी ये ओरिजिनल स्टेट्स थी, इसकी ओरिजिनल कॉलोनी थी अमेरिका की, ठीक है। इनको अभी तक जो है ना वो दी गई है कि इनको अभी तक इतनी इंपॉर्टेंस हासिल है कि अगर ये जो है जो कॉलोनीज है अगर ये किसी चीज को करती है ना, किसी बिल को रिजेक्ट करती है, तो इनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि फिर वो बिल जो है वो रेटिफाई, अगर इनको रेटिफाई नहीं करती, उसको रिजेक्ट करती है, तो वो बिल कभी भी वो अमेंडमेंट में तस्वीर नहीं होता, ठीक है ना। ओके मैम। अच्छा, इन इन जो 13 कॉलोनीज थी ना, उसमें से कुछ जो हिस्से थे ना बाद में उनके साथ आके फिर ये 50 स्टेट्स बनी थी। समझ आई कि जो बाद में जो स्टेट्स आके इनके साथ लगी थी, फिर वो जो थी वो 50 स्टेट्स बन गई थी। ये पहले शुरू में जो ओरिजिनल जो थी वो 13 जो कॉलोनीज थी, 13 स्टेट्स थी। अहमद समझ आइए? यस मैम, अब आगे समझ। अच्छा, और एनी क्वेश्चन? चले अब आप मुझे सुनाना शुरू करें। मुबश्शिर शाहीन है क्लास में? कौन सुनाएगा आज का काम, आज जो मैंने आप लोगों को काम किया है? मोहम्मद, आज आप भी क्लास में आए? मोहम्मद किधर है? गोहर अली, फातिमा, आयशा, आप लोगों में से कोई भी मुझे ये आज का लेक्चर जो है वो रिवाइज करके सुनाना शुरू करो। गोहर अली, मैं आपसे इशू का नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि लेक्चर रिवाइज करें। जो मैंने आज आपको पढ़ाया है उसको दोबारा से बोलना शुरू करें। आपको क्या समझ आई है पूरी क्लास को भी बताएं। मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? अहमद हसनैन, यस मैम। तो जब मैं क्वेश्चन करी तो उसको उल्टा रिप्लाई क्यों आ रहा है मुझे कि मैडम हमें समझ आ गई, कोई इशू नहीं? पता नहीं मैम। चले अहमद, आप सुनाना शुरू करें, आपको क्या समझ आई? यस मैम। मैम बेसिकली जो रेटिफिकेशन का प्रोसेस है मैम, उसके बारे में आज हमने पढ़ा है मैम। उसमें अमेरिका में जो रेटिफिकेशन का प्रोसेस है वो बहुत, जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है मैम वो बहुत डिफिकल्ट है और बहुत स्लो है। और इसी वजह से अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल काम है।
मैं उसमें जो एक मेन पॉइंट था वो ये था कि इस अमेरिका में अभी तक 4000 अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई थी, जिनमें से सिर्फ 23 अमेंडमेंट्स को रेटिफाइड करके उनको अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया। और मैम इसकी कुछ टाइम लिमिट्स हैं, इसकी 7 साल की इसकी टाइम लिमिट है, जिस स्टेट्स को 7 साल के अंदर इसे रेटिफाई करना होता है। और इसमें जो आपने अभी जैसे बताया मेजर 13 स्टेट्स जो हैं उन वो भी किसी के बारे में रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। और मैम इसमें कि 2 स्टेट्स का जब एक स्टेट में मर्जर भी हो सकता है बगैर किसी लेजिस्लेटिव उसके प्रोसेस के। और ये था। और मैम इसमें प्रोसेस जो है अमेंडमेंट का उसमें है कि सबसे पहले अमेंडमेंट प्रपोज होती है और उसके बाद फिर उसकी रेटिफिकेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है। जब वो रेटिफाई हो जाती है तो फिर वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाती है। सही, गुड। और कोई? बाकी क्लास किधर गायब है? सिर्फ मुझे मैसेजेस भेजे जाते हैं, ओके मैडम, ठीक है मैडम, बाकी होते किधर है? जब मैं पूछती हूँ क्वेश्चन तो गायब हो जाते हैं। यस मैम। जी सुनाए, आज मैंने क्या पढ़ाया आपको? तो बस आप मुबशिर आप और अहमद हसनैन 2 बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी कोई कहाँ छोड़ देते हैं ये लोग। मैम जो इसका रेटिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें था कि जो इसमें सबसे पहले तो जो है ना कि वो बिल इनिशिएट किया जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, और उसको सेनेट से भी मंजूरी लेनी होती है, और दोनों की बात उसको मंजूर किया जाता है। किसी एक की भी ना हो उसमें तो वो बिल मंजूर नहीं हो सकता। जैसे लेकिन कुछ बिल्स होते हैं जो कि जैसे मनी बिल्स वगैरह वो सेनेट खुद भी पास कर सकता है। और इसमें मैम जैसे इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं तो इसमें अमेंडमेंट का प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो है। और लेकिन इसमें जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स है वो वही जो बिल ऑफ राइट्स वाली अमेंडमेंट्स है वही है। और बाकी जो अमेंडमेंट बाद में की गई उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ। और इसमें टाइम लिमिट है कि 7 साल गुजरते हैं तो उसके बाद जो अमेंडमेंट है उसको मतलब खत्म कर दिया जाता है, उस पर मजीद नहीं वर्किंग की जाती। और यही बता सकता हूँ मैं। महद। जी मैम। मैम ये अमेंडिंग का मैम प्रोसेस बताया गया मैम, ये स्टेजेस होती है मैम के फौरन आप जो है ना मैम, जैसे यूके में है कि आप जो जो अमेंडिंग प्रोसेस है मैम वो इजी है। इसमें मैम इजी नहीं है, वो काफी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है मैम। इसमें एक पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें मैम पहले एक बिल ओरिजिनेट होता है मैम, उसके बाद बकायदा अगर किसी जो है कंसेंट हो बाकी सबकी और देखा जाए कि ये बिल सही है या नहीं है, तो फिर उसमें मैम देखा जाता है कि वो आगे लॉ बनता है या उसमें कुछ चेंजिंग आनी चाहिए होती है या नहीं होती। अगर मैम ये ना हो तो मैम वो फिर मैम काफी बिल जो है आए थे, तो उसमें से मैम थोड़े से थे जो मैम जिन पे मैम उन्होंने वो किया था, आगे पास किए थे। और मैम 23 थे आई थिंक मैम। बाकी मैम ये था कि इसमें मैम वो अमेंडमेंट करना मैम काफी मुश्किल है। ठीक है। चले, ये तो पता चल गया कि आप लोगों को कुछ थोड़ी बहुत समझ आ रही है, कुछ तो रिस्पॉन्स मिल रहा है ना मुझे। अच्छा बच्चों, आप लोगों को ये पता है कि आप जब इधर इसको क्लास को ज्वाइन करते हैं ना, तो आपकी जो अटेंडेंस है ना वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि या आप मेरे सामने ना पूरी प्रूफ आती है, लिस्ट शो होती है आपके नामों, ठीक है, तो उससे हो जाती है। और दूसरा ये कि जो आपकी क्लास पार्टिसिपेशन है ना, जो मैं आपसे आखिर में क्वेश्चन करती हूँ, इसके भी मार्क्स है, 15 नंबर है इसके। अच्छा, प्यारा लियाज ने पूछा है कि मनी व्हील्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करेगी या सेनेट में? बेटा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रपोज करती है मनी बिल्स को, और वो ही उसको करती है, लेकिन जो मनी बिल है उसके ऊपर सिर्फ एतराज कर सकते हैं
हाउस वो सेनेट वाले, लेकिन जितना जो ज्यादातर वो उसको वो जो है वो प्रपोज करना, उसकी रेटिफिकेशन करना, और उसको जो है वो जो सब कुछ जो जितने भी उसकी रीडिंग्स वगैरह होती हैं प्रपोज करना होता है, वो सारा कुछ जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ही करता है। जी और कुछ? सही। अच्छा, वो जो आप लोगों ने पिछली दफा वो 10 बच्चों ने मुझे प्रेजेंटेशन एक दी थी ना, जो मैंने कहा था कि एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, तो ये आप सिर्फ एक केस को आपने आपसे बोलना है ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। वो मैंने 3 मार्क्स आपको कहते, लेकिन वो मैं उसको 5 मार्क्स थे, 5 नंबर की थी। सिर्फ वो 10 बच्चों ने दी थी, तो वो 10 बच्चों के 5 नंबर जो है वो लग गए। मेरे पास लिस्ट है 10 बच्चों की, वो इंशाल्लाह ताला वो मैंने उनको भी जब मैं करूंगी ना रिजल्ट कंपाइल करूंगी, तो उसमें मैंने 5 नंबर उनको एक्स्ट्रा देने हैं उन 10 बच्चों को। बाकी है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को मैं आप लोगों के लिए क्विज भी पोस्ट करूंगी, ठीक है। छोटा सा क्विज होगा 10 से 12 नंबर का, ठीक है। 10 से 12 नंबर का एक वो होगा, 10 नंबर का होगा आपका एक क्विज, ठीक है। और वो ज्यादा से ज्यादा आपके हार्डली 5 to 10 मिनट्स में वो हो जाएगा, सही आसान सा होगा, इसी के मुताबिक होगा। और फ्राइडे तक हम लोगों के काफी ज्यादा ये जो है कुछ शुरू खत्म हो जाएंगे, उसके उसके नेक्स्ट वीक से हम लोगों ने स्टार्ट कर देना है आप लोगों की प्रेजेंटेशन। जितने मैंने आपको टॉपिक्स हिस्ट्री से लेके अब तक पढ़ाए हैं ना, वो सारे आप अपने आपस में डिवाइड कर लेंगे, बल्कि ना कुछ जो है मैं आपको खुद दूंगी केस लॉज, बल्कि आप लोगों ने खुद नहीं डिवाइड करने, मैं खुद आपको केस लॉज दूंगी, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन केस लॉज है ना अमेरिका की, वो मैं इंशाल्लाह आप सबको जो है वो दे दूंगी, वो आप अपनी मर्जी से पिक एंड चूज कर लेना। टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगी कि ये टॉपिक्स है, उनको आपने पिक एंड चूज करना है कि कौन सा ग्रुप कौन सा करे, तो वो आपकी आसानी के लिए होगा। ये थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन है कि मैं खुद ये साइन करूंगा। तो जमुल जमील जो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो ये 4-5 चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो आपको मैं जो है अगले जो वेडनेसडे तक आपको जितना भी कोर्स कवर करवाऊंगी ना, सही, तो वो मंडे और वेडनेसडे को 2 क्लासेस होंगी, फिर एक फ्राइडे को थी, फ्राइडे को हम क्विज रखेंगे। मंडे और वेडनेसडे तक जितना भी मैं आपको कोर्स कवर करवाऊंगी, वो सारे का सारा आपका इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, जो आपका क्विज होगा फ्राइडे को, जो आपका क्विज आ रहा है। और जो बेटा प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी मंडे से नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। एक दिन में 2 ग्रुप्स करेंगे, एक लेक्चर में 2 ग्रुप्स करेंगे। मैम मैम जितनी भी आपने स्लाइड्स हमें पढ़ाई हैं मैम, काइंडली एक दफा इनको शेयर कर दें हमारे साथ ताकि हम पढ़ लें फिर। बेटा मैंने सारी तो कर दी, आप चेक तो करें। ओके मैम, मैं चेक कर लेती हूँ। मैंने सारी शेयर कर दी है आपसे। और दूसरा आप अपनी गूगल ड्राइव पे जाके देखें, वहां मेरे लेक्चर्स पड़े होंगे सारे। आप लोगों ने वो चेक नहीं की? जब मैं आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स मैं आपकी ये जो है ऑनलाइन क्लास नहीं लेती थी, लेक्चर्स पोस्ट करती थी, वो आपने कभी नहीं सुने थे? अहमद हसनैन, सुनते थे वो लेक्चर्स आप मेरे? मैं मुझे चेक कर रहा है इस वजह से, जी चेक कर रहा है मैम वो आपने जो सेंड किया। सही। अभी मैंने आपको 2 की है सेंड, ठीक है। एक लिंक किया है और एक मैंने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड एक्सप्लेन करें। अच्छा निशान अशरफ बेटा, आपने सुना था तो उसमें मैंने काफी सारे लेक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन मैंने आपको दिए हुए हैं, वो भी आपके पास एक रिकॉर्ड ही है ना? चले ठीक है,
आप सब अपना ख्याल रखिएगा और अपनी चीजों के लिए तैयार रहें। बेटा मैंने पता करवाया था तो वो ये कह रहे थे कि शो हो रहे हैं, बच्चों को पता नहीं चल। बेटा क्लासरूम में स्लाइड्स नहीं है, स्लाइड्स क्लासरूम में नहीं है, मैंने ग्रुप में सेंड की है, कुरतुलैन और आयशा। जो आपके क्लास का ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें मैंने सारी स्लाइड शेयर कर दी है, आप वो चेक करें। और अगर आप कहते हैं कि क्लासरूम में पोस्ट कर दूं तो मैं वहां पर भी कर दूंगी, कोई इशू नहीं। सही, चले ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। बेटा आरिफ, मिड के रिजल्ट का अभी हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, जैसे ही आएंगे हम आपको बता देंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी पूछ लो। चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।